हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज अड्डा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एंड देन लास्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Scarcity of resources is a universal problem, as we all know that resources in a economy are scarce. They are not unlimited, so we have to use them in a proper manner so that they all utilized in a proper way. uh, तो इस लाइन में इस पैराग्राफ में मेनली यही बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो तो स्कार्स हैं, लेकिन हमारी वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमें रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करना है कि हमारी मैक्सिमम वांट्स पूरी हो सके और रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। Next paragraph is resources are not only scarce but have alternative uses as well. At the micro level, a farmer may decide to use his land for the production of rice, wheat or sugarcane. At the macro level, the government of a country may decide to use tax revenue for the purchase of defense goods or for the construction of night shelter for the homeless people. Scarcity of resources and the fact that resources have alternative uses lead to the problem of rational management of resources. It is the problem of allocation of resources to alternative uses. It is economic problem often called the problem of choice. The subject matter of economics revolves around the core problem of rational management of resources. It is concerned with how limited resources are rationally managed or optimally allocated to alternative uses, so that first one is at the macro level an individual maximizes his satisfaction as a consumer and maximizes profit as a producer. Second is at the macro level the economy is able to maximize the social welfare along with rapid pace of economic growth. Pace of economic growth refers to the rate at which production of goods and services increases per unit of time period. बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो रिसोर्सेज है वो ओनली स्कार्स नहीं होते, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1 kg ऑफ मिल्क है। ये तो है, तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड, लेकिन इसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसे कि वी कैन यूज़ मिल्क इन मेकिंग कर्ड, we can use in making butter, we can use it in making sweet. Now comes to the definition of economics. Economics is the study of economic issues or economics problem arising out of the fact that resources are scarce in relation to our needs, desires, and the scarce resources have alternative uses. It focuses on the rational management of scarce resources in a manner such that our economic gains are maximized. At the micro level, an individual maximizes his economic gain when he maximizes his satisfaction as a consumer and maximizes his profit as a producer. At the macro level, a country maximizes its economic gains when social welfare is maximized along with the rapid pace of economic growth. So basically इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है जो वो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है उसे रैशनली डिस्ट्रीब्यूट करना, सो डैट हमारे एज अ कंज्यूमर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले एंड एज अ प्रोड्यूसर हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इकोनॉमिक्स का यही बेसिकली वर्क होता है। उसके बाद आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन
economic issues are studied considering small economy units like an individual consumer or an individual producer. We are referring to microeconomics. At the level of an individual economic unit, producer or a consumer, the basic economic problem is the problem of choice related to allocation of scarce resources to alternative uses. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड वर्क करती है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राइस थ्योरीज के बारे में भी रीड करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो हमें इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनसे रिलेटेड काम करती है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल काम करती है जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है। तो आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की एज अ होल उसको स्टडी करती है। द बेसिक प्रॉब्लम्स continues to be the problem of rational management of scarce resources as in माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो स्कार्स रिसोर्सेज को रैशनली डिस्ट्रीब्यूट करना उसी से रिलेटेड स्टडी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बस वही है, बस इसके अंदर हम एज अ होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स begins with the study of macroeconomics variables such as aggregate demand and aggregate supply. It analyzes how economic equilibrium level of output is struck when where aggregate demand is equal to aggregate supply. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जैसे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में स्टडी करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, इन सब के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ कम्स टू द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. There are mainly 7 components of macroeconomics. First one is theory related to equilibrium level of output and employment. मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे स्टक होता है जब AS इज इक्वल टू AD, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. Second is theory related to inflationary and deflationary gap in the economy. It studies how departure from full employment equilibrium output causes inflationary gap or deflationary gap. It means कि जब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें कौन सा गैप होता है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, और उसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. Theory of multiplier. It causes the process of income generation owing to investment expenditure in the economy. It means कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितनी इनकम जनरेट होगी, इसकी स्टडी हम थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर में करेंगे. Fourth one is fiscal and monetary policy. These relate to budgetary measures and monetary measures respectively to correct the situation of inflationary and deflationary gap. फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज मेनली डेवलप की जाती है टू स्टेबलाइज द इकनॉमी. जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप इकनॉमी में आ जाते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए हम इन पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं. फिफ्थ वन इज़ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन. स्टडीज द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड हाउ कमर्शियल बैंक ऐड टू मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन. इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या है, वो कैसे मनी को सप्लाई करता है और कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है. सिक्स्थ वन इज़ गवर्नमेंट बजट. इट फोकसेस ऑन मेजरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट्स इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट के अंदर हम बेसिकली
गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बजटरी डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी में एंड ऑल दिस. And last one is exchange rate and balance of payments. It analyzes how exchange rate is determined in the international money market and how balance of payment impacts the level of economic activity in the domestic economy. इसके अंदर हम करते हैं कि एक्सचेंज रेट इकोनॉमी में कैसे डिटरमाइन होता है और इम्पैक्ट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डालती है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. तो आगे हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या. सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. Second one is microeconomics is basically concerned with determination of output and price for an individual firm or industry. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो आउटपुट एंड प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं वो एक इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री के लिए होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल. और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस जो पूरी इकोनॉमी के लिए होता है. लास्ट वन इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, that is it is assumed that aggregate output is given while we are studying determination of output and price of an individual firm or industry. इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी एज्यूम कर लेती है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं और हमें सिर्फ आउटपुट एंड प्राइस डिटरमाइन करना है, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री के लिए. Same study of macroeconomics assume that micro variables remain constant. It is assumed that distribution of income remains constant when we are studying the level of output in the economy. मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम कर लेती है कि माइक्रो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है और हमें जो डिटरमाइन करना है वो करना है एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू.